हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दिखलाने जा रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 बाई इन्फिनिटी? जस्ट सी द टेबल। ये 1 बाई इन्फिनिटी अपने आप में अजीब चीज़ है कि इन्फिनिटी का कोई एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होता। इन्फिनिटी के साथ क्या है? इट इज़ जस्ट एन आइडिया। हम लोग उस इनफाइनाइट वैल्यू पर कभी पहुंच ही नहीं सकते। सो इनफाइनाइट का कोई वैल्यू है ही नहीं। इफ इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर, इट इज जस्ट एन आइडिया। सो 1 बाई इन्फिनिटी हैज़ गॉट नो मीनिंग इन रियल सेंस। इट इज जस्ट एज गुड एज 1 बाई गुड, 1 बाई ब्लैक। इसका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा क्या? नहीं। उसी तरह से 1 बाई इन्फिनिटी के लिए भी हम लोग विथ सर्टेनिटी नहीं कर सकते। बट हम लोग देखते हैं कि as x gets infinity, but we see that 1 by x is going towards 0. So you can't say 1 by infinity equals to 0. What will you say? Limit of 1 by x as x approaches to infinity is 0 and is written as limiting value of 1 by x equals to 0. Just mind this graph. As x increases, your horizontal axis is x-axis. As x increases, value of y tends towards 0 because it is 0, 1, 2, 3, 4 like this. So this is the graph indicating as x gets higher and higher and higher, value of y gets closer and closer to 0. So in other words, as x approaches infinity, then 1 by x approaches 0. I am not saying when x is equals to infinity, 1 by x equals to 0. So it is a special way of saying as x approaches infinity, tending to infinity, this approaches towards 0. So when we see limit, think approaches. जब कभी भी हम लोग लिमिट की बात करते हैं ना, नेवर थिंक एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट बट अप्रोचिंग। सो वी नो दैट एज एक्स गेट्स बिगर एंड बिगर, infinity means it tends to infinity means x becomes bigger and bigger and bigger, then 1 by infinity gets closer and closer towards 0. So it is the intuitive meaning of 1 by infinity. So 1 by infinity in literal meaning has got no meaning, but we say as x gets bigger and bigger and bigger, 1 by x tends to 0. So while solving any problem, it would be better to say that limit equals to some value because it looked like it is going towards. So what is the limit of y as y बराबर 5x, where x is tending towards infinity? बोलो क्या होगा? पिछले क्लास में, पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा 1 बाई इन्फिनिटी, बट यहाँ पर है 5 इंटू इन्फिनिटी। सर्टेनली 5 इंटू इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी होगा। सो यहाँ पर आप क्या देखते हो? एज एक्स गेट्स लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर, 5x बिकम्स ऑल्सो, 5x भी लार्जर एंड लार्जर होगा। So as x approaches infinity, 5x also approaches towards infinity. So आप लिमिट के टर्म्स में क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ 5x when x tends to infinity is infinity. स्टूडेंट, ये समझने के लिए इस एग्जाम्पल्स को देखिए। पिछले क्लास में आपको इंडिटर्मिनेट फॉर्म में हमने कहा था 0 by 0 इज अ इंडिटर्मिनेट फॉर्म, बट इट इज़ नॉट ओनली. Infinity by infinity is also a indeterminate form. Just see this example. X is tending towards infinity. If you put infinity at every place, infinity minus infinity but infinity, again it becomes infinity by infinity, which has got no meaning. So we can write this equals to. Here, what is the highest term? Highest power of the term? Square. So take x square as a common. So when you take x square common out, 4x square becomes 4.
minus 3x becomes 3yx, 5 becomes 5x square. Similarly, in the denominator, x square taking common out, this becomes 2 plus this plus this. Now, how it becomes 2? Because x square and x square, if you cancel out, then ब्रैकेट के अंदर के जो भी टर्म्स है 3 infinity, आपको हमने दिखलाया था 1 infinity becomes 0, 5 infinity becomes 0, so every terms become 0. ऊपर में रह गया 4, नीचे में रह गया 2, and 4/2 becomes 2. So it is the way after cancelling x square ऊपर और नीचे and taking limit 3x, 5x square and all the fraction tends to 0 because x is tending towards infinity. So it is the application of our concept कि 1/infinity tends towards 0. Some indeterminate form. प्रीवियस स्लाइड में हमने आपको बतलाया था सबसे पहले 0/0 इज द इंडिटर्मिनेट फॉर्म बिकॉज इन मैथमेटिक्स वी हैव गॉट नो मीनिंग. सिमिलरली infinity/infinity is also indeterminate form. Infinity minus infinity is also indeterminate. Infinity/infinity, 0 into infinity, infinity to the power 0, 0 to the power infinity. These all terms comes under the head indeterminate form. Means in mathematics, in usual mathematics, जो आप स्कूल के दिनों में पढ़े हैं, ऐसे किसी भी फॉर्म का कोई एक वैलिड आंसर नहीं आता. तो आपको लिमिट वाले चैप्टर्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे जो इस रूप में हैं और उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज़ देखो. चलो आज हम आपको एक एग्जाम्पल दिखलाते. ध्यान से देखिए, x टेंड्स टू 3, मतलब x minus 3 becomes 0, तो 1/0 becomes infinity. X square means 3 square 9, 9 minus 9 becomes 0. So 6/0 is infinity. So it is a case of infinity minus infinity. It is again an indeterminate form. See how we solve it. ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है. सो यहाँ से आप नोट करना शुरू कीजिए. हम चाहेंगे सभी विद्यार्थी अपना कॉपी कलम खोलेगा और इसको लिखेगा. जब तक आप लिखोगे नहीं, आपके दिमाग में यह बातें आएगी नहीं. So the given function is of the form infinity minus infinity as x equals to 3. We can write limiting value as x tends to 3 of 1/x minus 3 minus this. अब आप यहाँ पर दो फ्रैक्शंस है, दोनों फ्रैक्शंस का एलसीएम ले लीजिए. यहाँ है x minus 3, इसको आप ब्रेक करेंगे तो वास्तव मिलेगा x minus 3 into x plus 3. तो दोनों का एलसीएम आपका सिंपली हो गया x square minus 9. और उसी तरह से ऊपर में चूंकि x minus 3 से आप इसको डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा x plus 3 minus 6. सो व्हाट इज द आंसर? ऊपर हो गया आपका x minus 3, नीचे में आपका x plus 3 into x minus 3. चूँकि x is tending towards 3, not equals to 3, so x minus 3 is not 0. That's why you can cut out x minus 3 in the numerator and the denominator, and finally it becomes 1/x plus 3 where x tends to 3. Magic. What magic happens? If you put x equals to 3, it becomes 1/3 plus 3, that is 1/6. It is the valid answer. Initially you have got no valid answer, it becomes infinity minus infinity, but using the concept of limit we get 1/6. So it is the power of limiting value. Now I show you one powerful applications of limit. What is this? Find the limiting value of a series. What is the series? C. This series goes towards infinity. It is an infinite series. How it is? 1 square by n cube plus 2 square by n cube, this. If n tends to infinity, then every term, one something by infinity, 0. Second term 2 square by infinity, 0, 0, 0. तो
आपने जो स्कूल के दिनों में पढ़ा 1/∞ बराबर अगर आप 0 मान लेते हो तो हर एक टर्म अपने आप में 0 हो जाएगा, है कि नहीं? गुड, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, और सभी 0 का सम टोटल क्या हो जाएगा? अगेन 0। बट अभी तुम इस एग्जाम्पल्स में देखो कि जब हम कंसेप्ट ऑफ लिमिट अप्लाई करते हैं, if you put n equals to infinity, we see that each terms becomes 0. So in such cases, it would be better to find their sum first by algebraic method and then apply concept of limit. So this is your question. Mind it. चलो सभी लोग अपने कॉपी में लिखो। लिखा आपने? ध्यान से देखिए, सभी का डिनोमिनेटर एन क्यू है। इफ़ यू टेक एन क्यू एज ए एलसीएम तो ऊपर हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 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 एन स्क्वायर। स्टूडेंट याद करो अलजेब्रा के वो दिन जब हम लोग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस प्लस एन स्क्वायर अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस वाले चैप्टर्स में इसका सम बतलाए थे। क्या था सम? चूँकि लास्ट टर्म एन है तो एन इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। याद है सभी को? हम अपने से कुछ नहीं कह रहे हैं। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, वी नो दैट दिस इक्वल्स टू दिस वन डिवाइडेड बाय एन क्यू। दिस थिंग, अब ये जो एन क्यू है वास्तव में n इंटू एन। फर्स्ट n को आप इस n से कट आउट कर दो, फिर फर्स्ट ब्रैकेट में n से डिवाइड करें तो n बाई एन 1 बाई एन। सेकेंड ब्रैकेट में जब आप n से डिवाइड करोगे 2n बिकम्स 2 एंड दिस बिकम्स 1 बाई एन। और नीचे में आपका 6 था तो 6 आ गया। एन क्यू ये तीनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इज इट क्लियर? गुड। अब आप यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ लिमिट लगाते हैं कि 1 बाई एन, n टेंड्स टू इन्फिनिटी बिकम्स 0, 1 बाई एन, n टेंड्स टू इन्फिनिटी बिकम्स 0। सो फाइनल आंसर क्या हो गया? एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n टेंड्स टू 0, दैट्स वाई इट्स फाइनल वैल्यू बिकम्स 1 बाई 3। स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी वेरी पावरफुल एप्लीकेशन ऑफ लिमिट। क्यों? क्योंकि इनिशियली आपने देखा था 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर बाई एन क्यू, 2 स्क्वायर बाई एन क्यू, एवरी टर्म्स वाज 1 बाई इन्फिनिटी मीन्स 0, 0 0 0, सभी को अगर आप जोड़ोगे तो 0। ये था हमारा पुराना कंसेप्ट। बट लिमिट के कंसेप्ट अप्लाई करने से एक वैलिड आंसर आया 1 बाई 3। हाउ इट इज बतलाइए। स्टूडेंट, ये सभी आप नोट कर लो, इसको बनाना। और इस तरह के कुछ और भी प्रॉब्लम्स आप बुक्स में देखिए, उसको सॉल्व कीजिए। इस पर आधारित यूनिवर्सिटीज़ में क्वेश्चंस आता है, अच्छी तरह से आप बना लीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए अच्छा होगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो आज आपको हमने दिखलाया 1 बाई इन्फिनिटी का क्या मतलब है और 1 बाई इन्फिनिटी को हम लिमिटिंग वाले चैप्टर्स में कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। कैसा लगा? अच्छा लगा? लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने सभी दोस्तों को भेजना जो आज क्लास में नहीं है। थैंक यू।